Alright students, it's 9 o'clock. Let's start our lecture. Good morning. Good Good morning. morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning. Alright. So let's do the revision what we have done in last lecture. हमने last lecture में cookies which is client side state management technique से start किया था. We have seen that within cookie we can store small amount of information which is user specific. Another thing about cookie is it is created with the help of HTTP cookie class, right? And if we want to add any value within cookie, then we need to use values collection of the object of HTTP cookie class. And the most important part is we need to add that object in the response object cookies collection. Then only we will able to access that cookie on any of the pages within our website. All right. Main advantage of cookie is as it is client side state management technique means it will not use any server resources. Another thing is it is simple to implement, right? And if we see the darker side of the cookie is we cannot store crucial information within cookie because as all the informations are stored on the client side, so we cannot store confidential information on the client side because any of the person can come and hack your computer and get all the cookies. Means if we have stored important information within the cookie, then it can be used by any of the person who hacked your machine. So this is this what we have seen within the cookies topic. Yeah, we have also seen the practical, that is I have demonstrated one example related to it, right? Then we have started with global application class, which is an application file present in ASP.NET, and the name of that global application file is global.asax. The most important part of global.asax file is, as I have told that it is an application file, means it will provide us most important 5 events, that is application start, application end, application error, and session start and session end. Right? It is as it is considered as a global class, means we can add any of the variable within that class and it can be used within that class, and obviously it can be used within the application. Now when the application start event is executed, obviously whenever any user will try to access your application, that is the first user of your website, at that time this application start event will be fired, application end obviously it will be fired when the last user will close the application within its browser. Then obviously the execution of the application will be stopped and uh, application end event will be fired. Application error event will be fired if any of the error occur which is unhandled, right? At that time this application error event will be fired and you can take some steps or you can catch that particular error within application error event. Another two important events were session start and session end. Session start event is fired whenever the user's session is started, right? Means if the user log in and we have maintained the session, then session start event will be fired, and whenever user will click on logout, that is, or we can also say it as a sign out, at that time session and event will be fired. Now another important part of session is if we will not maintain the session, then ASP.NET itself maintains the session automatically for each and every user who are using website of who are using our website. So this is also the important part of the session which we need to consider, right? So these are the things which we have seen within our last lecture. Now let's continue. Today we will see first topic, that is session, which is server side state management technique, right? Obviously we have seen its practical example within student management system, right? So today first of all we will cover theory portion of the topic and then we will see one small example regarding session, and if the time permits we will also see another server side state management technique, that is application, right? So student,
this is the topic, that is session. As I have told that it is server-side state management technique. It is known as server-side state management technique because it stores its value on the server. That's why it is known as server-side state management technique. All right. See over here, the most important part is separate session is created for each client. Obviously, if we want to maintain user-specific information, then we need to create separate session for all the users, right? So this is the thing, that session is created for all the users, but separate session is created for all the users means कि जब भी हम सेशन के अंदर पर्टिकुलर यूजर के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, देन इट इज अवेलेबल टू दैट पर्टिकुलर यूजर ओनली. फॉर एग्जांपल, वी हैव सीन that we have stored uname variable within the session in student management system website. At that moment, if the same application is accessed by two different users from two different machines, then separate session for both the users will be created. Two different variables will be created within that session, and information regarding that particular variable will be stored in their own session. मतलब वो पर्टिकुलर यूजर के सेशन में ही उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी. So this is the important thing. Another thing is that as I have told that ASP.NET also creates session automatically for all the users. It means that whenever either we create the session, or if ASP.NET creates sessions automatically, in both the cases it will assign one session ID to that particular session, which is of 128 bits. Means we can say that it is an identifier. Means if I want to identify session of a particular user, and if I have session ID, then I will be able to access session of that particular user in an easy manner, right? Means अगर आपको कोई भी यूजर का सेशन आईडी पता है, तो आप वो पर्टिकुलर सेशन में से कोई भी वैल्यू को आप रिट्राइव कर सकते हो. And obviously its size is 128 bits. Another thing, we have already seen that within global application class there are two events, which are session start and session end. These are the two important events because already we have seen the significance of these two events, that whenever user session is started, at that time session start event is fired, and whenever user sessions end or destroy or terminated, at that time session end event is fired, right? So students, so this is the basic things regarding session. Here we need to remember is that the most important part, that whenever we will create the session, the information that we will store within the session is stored on a server. Means session will use server resources, right? So this is the important thing. All right. Now how we can store value within the session? Already you know, because we have seen in student management system website, but still let's see a small example. See over here, if I want to create the session, means if I want to store the session for a particular user, what I need to do, I need to use session keyword within parenthesis double quotation. I need to specify the variable name, and after that equal to sign, and then I need to specify the value, right? So this is a very simple thing कि आप session के अंदर कैसे name value pair को आप store कर सकते हो. Likewise, you can also store multiple values within the session for particular user. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वैल्यू आप सेशन में स्टोर कर सकते हो एक यूजर के लिए, right? You can store multiple values within the session for a particular user, or more precise we can say for a particular session. So again, I have used the same syntax. So I have written session, that is variable name, that is name, and I have assigned the value, right? So this is the way how we can store the value within the session. Obviously, as you are able to see that it's a collection, right? We can also say session as a collection, or more precise, we can say that we can consider session as a collection, and we can add name value pair within the session. All right. Now, if I want to retrieve the value from the session, again, the same part we have already seen in student management system website. So here it is that if I want to retrieve the value from the session, obviously
I will use the same thing, that is session, parenthesis, double quotation, and the variable name. But over here, we need to consider the data type of that particular value which is stored within the session. So what we need to do, according to the data type of the value that is stored within the session, we can create the variable, or it can also be assigned to some condition, right? And if it is needed, we need to use conversion function, right? This is another way how we can convert the value. आपने already VB.NET में पढ़ा है that there are two different types of conversion function. One is which is present in system.convert namespace, right? And another is that is the function that starts with C, right? So over here, convert is the name of the class. Within that, 2int32 is the name of the method, which will convert the value which is present within the session in integer data type, right? And to store the value which is present within id variable which is present in session, मैंने यहाँ पे क्या create किया है? I have created one variable that is id which is of an integer data type, right? So इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेशन में से वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप, एंड यू कैन ऑल्सो स्टोर दैट वैल्यू विद इन वन वेरिएबल, राइट? सो ओवर हियर द इम्पोर्टेंट पार्ट इज, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप के वेरिएबल में आपको सेशन के अंदर जो वैल्यू है वो आपको स्टोर करनी है, तो ऑब्वियसली यू नीड टू यूज कन्वर्जन फंक्शन, right? Another example, that already we have stored name also within the session, so I can retrieve name by the same way, that is session I will use, within parenthesis double quotation I will write the variable name, as the name is obviously of string data type, so I will use toString function which will convert the value which is present within the session to the string data type, and it is stored within the nm variable of string data type, राइट? मतलब इस हिसाब से आप कोई भी वैल्यू सेशन में से रिट्रीव कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, और आप पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो. Over here, if I want to use cint function, then also I can use over here, instead of this convert.toInt32, simple I need to specify over here, that is cint, right? And within parenthesis double quotation I can write this statement, right? So again, you need to remember there are two different types of conversion functions which are present in VB.NET. So same conversion functions you can also use within ASP.NET, right? And this is how you can store and retrieve values from the session. All right. Now the most important part. Up till here, whatever we have seen were the small things which you were already knowing, right? But the most important part is, अगर आप चाहते हो कि आपके सेशन की वैल्यू web.config फाइल के अंदर आप स्टोर हो, then you need to use session state tag. Again I repeat, you need to use session state tag within web.config file. हमें पता है कि web.config फाइल इज एन XML फाइल, एंड ऑब्वियसली XML फाइल के अंदर भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, आपको टैग का यूज करके इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो. सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ सेशन एंड स्टोर इट्स वैल्यू, मींस स्टोर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेशन within web.config file, then you need to use session state tag. Again I repeat, you need to use session state tag. आप web.config फाइल में सेशन स्टेट टैग का यूज करके उसके रिलेटेड पर्टिकुलर वेबसाइट के सेशन रिलेटेड आप उसकी प्रॉपर्टीज स्टोर कर सकते हो, राइट? सो लेट्स सी which are the attribute, or more precise, which are the properties of session state tag. First is mode, right? First is mode. As you are able to see, mode क्या store means mode क्या determine करता है? The storage location to store the session data. आप जो भी डेटा सेशन के अंदर स्टोर करते हो वो आपको कौन सी जगह पे स्टोर करना है, राइट? अगेन आई रिपीट, जो आप इंफॉर्मेशन सेशन के अंदर स्टोर कर रहे हो पर्टिकुलर यूजर के लिए, वो इंफॉर्मेशन सेशन के अंदर आपको कहाँ पे स्टोर करनी है, राइट? Obviously there are many different locations where you can store the value, right? That is, you can store the value within
if you specify in process, means it will store the value within the process memory, right? If you specify state server, then obviously the data will remain persistent within the memory whenever the application restarts, right? So we can say separate process is created to store session data. अगर आप स्टेट सर्वर वैल्यू मोड प्रॉपर्टी के अंदर सेट करते हो, इट मींस आपके जो भी डेटा है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर यूजर के सेशन के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन परसिस्टेंट रहेगी मेमोरी के अंदर, दो आप एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करोगे। अगेन आई रिपीट, दो आप एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करोगे, then too the value will remain present within the memory if you use state server value within the mode property. Another is SQL server, means if you want to store user specific information, right, within the database, that is SQL server, then you can use SQL server value within the mode property, right? मीन्स अगर आप एसक्यूएल सर्वर सेट करते हो, देन व्हाट यू नीड टू प्रोवाइड, आपको वहां पे एसक्यूएल सर्वर की कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कौन से प्लेस के ऊपर, मीन्स कौन से मशीन के ऊपर, कौन सी डेटाबेस के अंदर आपको ये पर्टिकुलर सेशन की वैल्यू स्टोर करनी है। एंड अगेन द सेम थिंग, अगर आप कोई भी चीज सेशन के अंदर स्टोर करते हो, मीन्स डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हो, टेबल के अंदर स्टोर करते हो, then again it will remain persistent within the session, right? Another is if you set the value that is off, means आपको सेशन क्रिएट नहीं करना है पर्टिकुलर यूजर के लिए। अगेन आई रिपीट, अगर आप मोड के अंदर, सी इट इज ओवर हियर, राइट, अगर आप मोड के अंदर वैल्यू ऑफ सेट करते हो, देन इट स्पेसिफाइज कि आपको कोई भी सेशन क्रिएट नहीं करना है, राइट? But then also ASP.NET will create its own session. Again I repeat, यूजर को खुद को कोई भी सेशन क्रिएट नहीं करना है, राइट? बट देन टू ASP.NET खुद एक सेशन क्रिएट करेगा, राइट? सो इफ मीन्स नॉट वांट टू यूज दिस सेशन स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिसेबल करना पड़ेगा। और आप डिसेबल कैसे कर सकते हो, आप ऑफ सेट करोगे मोड के अंदर, तो ये सेशन डिसेबल हो जाएगा, मीन्स कोई भी वैल्यू सेशन के अंदर स्टोर नहीं होगी, ना ही यूजर करेगा और ना ही ASP.NET करेगा, राइट? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि सेशन यूजर भी क्रिएट कर सकता है और ASP.NET खुद भी सेशन क्रिएट करेगा इफ यूजर नहीं क्रिएट करता है। लेकिन आपको सेशन यूज ही नहीं करना है, आपको सेशन डिसेबल ही रखना है, तो आप क्या करोगे, आप मोड प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू क्या सेट करोगे, ऑफ सेट करोगे, तो ऑब्वियसली सेशन डिसेबल हो जाएगा, राइट? एंड इफ यू सेट कस्टम वैल्यू विद इन द मोड, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, आपको डेटा कहाँ पे स्टोर करना है, राइट? कोई भी अलग डेटा स्टोर के अंदर आपको डेटा स्टोर करना है, राइट? डेटाबेस भी हो सकती है, कोई फाइल का यूज करके भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट यू नीड टू प्रोवाइड प्रोवाइडर फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा स्टोर। अगेन आई रिपीट, अगर आपको ये कोई भी मोड यूज नहीं करना है, मतलब मुझे मेमोरी के अंदर भी डेटा स्टोर नहीं करना है, मुझे ऐसे इस तरह से भी डेटा स्टोर नहीं करना है कि परसिस्टेंट रहे, मुझे एसक्यूएल सर्वर में भी डेटा स्टोर नहीं करना है, ऑब्वियसली मुझे सेशन डिसेबल भी नहीं करना है, बट स्टिल आई वांट टू मेंटेन द सेशन, और जो फाइल मैं क्रिएट करूं, जो डेटाबेस मैं क्रिएट करूं, वो वहां पे वो पर्टिकुलर डेटा स्टोर के अंदर मुझे डेटा मीन सेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे वहां पे स्टोर करनी है। तो मुझे क्या सेट करना पड़ेगा, द फर्स्ट पार्ट इज मुझे मोड प्रॉपर्टी के अंदर कस्टम सेट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई नीड टू डू, मुझे वो पर्टिकुलर डेटा स्टोर के लिए मुझे प्रोवाइडर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने web.config फाइल के अंदर जब भी एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर की थी, वहां पे हमने एक और एट्रीब्यूट भी सेट किया था, दैट इज प्रोवाइडर नेम। एंड
अगर हमारी डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर के अंदर है तो हम प्रोवाइडर नेम क्या प्रोवाइड करेंगे, दैट इज system.data.sql client, means I want to store the data within SQL database, right? So that is the provider name, right? means आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ मीन्स कौन सी टाइप की डेटाबेस या कौन सी टाइप की फाइल सिस्टम आप यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सेल के अंदर डेटा स्टोर करना है तो आपको OLADB प्रोवाइडर का यूज करना पड़ेगा, राइट? कोई ऐसी डेटाबेस है जो ASP.NET डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, बट इफ यू प्रोवाइड द प्रोवाइडर नेम और इफ यू प्रोवाइड द कनेक्शन स्ट्रिंग वो सपोर्ट करेगा, देन यू कैन यूज अ जनरल प्रोवाइडर विच इज ODBC, राइट? ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी VB.NET में डिस्कस की है कि कौन सी टाइप की डेटाबेस हो तब कौन सी नेम स्पेस और मोर प्रिसाइज आप कौन सा प्रोवाइडर यूज कर सकते हो, राइट? So over here you need to consider that if you want to store value within the session and its configuration is to be stored within web.config file, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सेशन स्टेट टैग का यूज करना पड़ेगा और सेशन स्टेट टैग के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसकी प्रॉपर्टी या और यू कैन ऑल्सो से इट एज एन एट्रीब्यूट आप उसको सेट कर सकते हो। एंड फ्रॉम दैट फर्स्ट एट्रीब्यूट और फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी हैव सीन इज मोड। मोड क्या स्पेसिफाई करता है, इट विल स्पेसिफाई द स्टोरेज लोकेशन कि कहाँ पे आपको सेशन के डेटा स्टोर करने हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज इन प्रोसेस, अगेन आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज इन प्रोसेस ऑफ मोड प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखना है, राइट? नाउ अनदर थिंग, एज आई हैव टोल्ड दैट यू कैन स्पेसिफाई द कनेक्शन स्ट्रिंग और मोड प्रिसाइज। अगर आप यहाँ पे SQL सर्वर वैल्यू सेट करते हो मोड प्रॉपर्टी के अंदर तो मैंने आपको बोला कि आपको कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट? सो ओवर हियर सी यहाँ पे SQL कनेक्शन स्ट्रिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। व्हाट इज बीन स्पेसिफाइड, यहाँ पे ये जनरल कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड की है, राइट? मतलब आपका डेटा सोर्स कहाँ पे है, एक IP एड्रेस प्रोवाइड किया है, मतलब ये मशीन के ऊपर हमारा डेटाबेस है, राइट? और वो पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर यूजर आईडी क्या यूज करना पड़ेगा हमें, ऐसे, राइट? मतलब ये एक जनरल कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड की है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यही कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करोगे। आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो और वो पर्टिकुलर डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो अगर वो SQL सर्वर के अंदर है तो, बिकॉज see over here it is only specific to SQL connection string, राइट? अगर आप कोई और डेटाबेस यूज करना चाहते हो तो आपको अलग से उसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज नहीं होगा, राइट? अनदर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सेशन स्टेट टैग इज टाइम आउट, मतलब लाइफ टाइम ऑफ द सेशन। आपको सेशन के अंदर कितने टाइम के लिए वैल्यू स्टोर करनी है, उसके बाद वो अपने आप सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, हियर वी नीड टू स्पेसिफाई द लाइफ टाइम ऑफ द सेशन। इट मीन्स अगर सेशन आप पर्टिकुलर वैल्यू देते हो वो ड्यूरेशन के अंदर आइडियल रहता है तो सेशन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? यहाँ पे एज यू आर एबल टू सी हमने 20 मिनट्स ऐसा लिखा है। इट मीन्स मैं टाइम आउट में 20 सेट करूंगी, इसका मीनिंग ये होगा कि इफ सेशन इज आइडल फॉर 20 मिनट्स, मतलब वो पर्टिकुलर 20 मिनट्स के अंदर हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं सेशन के साथ, ना ही डेटा स्टोर कर रहे हैं और ना ही सेशन में से डेटा रिट्राइव कर रहे हैं, राइट? मीन्स द होल सेशन इज आइडल, देन इट विल वेट फॉर 20 मिनट्स, राइट? और 20 मिनट्स में अगर पूरी 20 मिनट्स में सेशन आइडल रहता है तो वो पर्टिकुलर सेशन को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। बहुत बार हमने देखा होगा कि अगर हम कोई ईमेल अकाउंट मतलब ओपन करके चले जाते हैं हमारा, राइट? और हम थोड़ी देर बाद आते हैं और अगर हम वहां पे कोई भी ईमेल के ऊपर क्लिक करते हैं, अगर हमें वो ईमेल देखना है तो वो क्या करेगा, हमें मैसेज देगा दैट योर सेशन हैज एक्सपायर्ड। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज उसके अंदर भी ऐसा सेट किया हुआ है कि अगर यूजर का सेशन पर्टिकुलर मिनट्स तक आइडियल रहता है, मतलब सेशन के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होती है, राइट? तो वो क्या करेगा, सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट?
सो दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट। इससे क्या बेनिफिट होगा? फॉर एग्जाम्पल, हम हमारी वेबसाइट के अंदर ये पर्टिकुलर वैल्यू यूज करते हैं, दैट इज मैंने web डॉट कॉन्फिग फाइल के अंदर सेशन स्टेट टैग के अंदर मैंने टाइम आउट स्पेसिफाई किया 5 मीन्स 5 मिनट्स तक वो उसका ड्यूरेशन कितना कंसिडर करेगा? 5 मिनट्स का कंसिडर करेगा। नाउ व्हाट विल हैपन? फॉर एग्जांपल, आई एम द एडमिन ऑफ द वेबसाइट, मैंने वेबसाइट के अंदर लॉगिन किया है। नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे और कोई काम आ गया, सो मैं लॉग आउट करना भूल गई हूँ, राइट? सो ऑब्वियसली मैंने एडमिन के हिसाब से मेरी वेबसाइट के अंदर लॉगिन किया है। इट मीन्स अगर कोई यूजर, मैं चली गई हूँ और मेरी वेबसाइट को एक्सेस करता है मेरे मशीन में से, then that user will have admin rights because मैंने ऑलरेडी वेबसाइट के अंदर एडमिन रोल से लॉगिन कर दिया है, राइट? अब क्या प्रॉब्लम होगा? ऑब्वियसली एडमिन यूजर से लॉगिन किया है मीन्स वो मेरा लॉगिन है, लेकिन अब जो कोई भी टास्क उसके अंदर हो रहा है वो मैं नहीं कर रही हूँ, कोई और यूजर मेरे मशीन का यूज करके कर रहा है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर यूजर गॉट एक्सेस ऑफ एडमिन लॉगिन, क्योंकि मैंने सेशन क्रिएट मतलब मैंने लॉगिन किया था, तो ऑब्वियसली सेशन क्रिएट हो जाएगा और मैं अपना मशीन छोड़ के चली गई, तो मैंने लॉग आउट नहीं किया था। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, अगर वो यूजर 5 मिनट्स के बाद आता है मेरे मशीन के ऊपर और कोई टास्क करने की ट्राई करेगा, तो वो उसको बता देगा दैट द सेशन हैज एक्सपायर्ड, मतलब वो ऑटोमेटिकली सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट? सो द बेनिफिट इज, अगर सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है यूजर का, तो कोई भी यूजर हमारे अकाउंट में से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन। इसीलिए सारी वेबसाइट के अंदर सेशन मेंटेन होते हैं, राइट? कि अगर मीन्स इट इज, वी कैन ऑल्सो सी दैट इट इज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी फॉर अवर एप्लीकेशन, के सेशन के अंदर अगर हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं और सेशन की टाइम आउट वैल्यू हमने 5 सेट की है, इट मीन्स 5 मिनट्स तक अगर हमारा सेशन आइडियल रहता है, मतलब यूजर कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिक वो उसको सेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर एक बार सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कोई भी यूजर पर्टिकुलर यूजर की यूजर के रोल के हिसाब से वो कोई भी काम भी करना चाहेगा उसके अंदर, तो वो नहीं कर पाएगा, कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज सेशन डिस्ट्रॉय हो गया है। और अगर सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देगा, राइट? मीन्स अगर लॉग आउट हो जाता है और XYZ यूजर को हमारी सिस्टम का यूज करके हमारी वेबसाइट के अंदर लॉगिन होना है, देन दैट पर्टिकुलर यूजर मस्ट नीड यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो ही वो फिर से वो पर्टिकुलर रोल के अंदर लॉगिन कर सकता है, वो पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट में वो लॉगिन कर सकता है। सो वी कैन से मीन्स session will also provide security for our website, and that is the most important thing for of session, right? Another is that is cookieless. Another property of session state is cookieless. As the name says, the it is regarding cookies. Now what is the significance of this property, right? इसके अंदर हम 3 में से कोई भी एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मीन्स इफ आई राइट cookieless is equal to auto detect, right? See over here, there are 3 values which I can use within this cookieless property of session state. अगर मैं यहाँ पे auto detect यूज करती हूँ, मीन्स आई विल राइट cookieless is equal to auto detect, मीन्स वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि कुकी यूज करनी है या फिर URI। यहाँ पे URI का मीनिंग URL लेना है। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे URI का मीनिंग URL लेना है। मीन्स वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि मुझे सेशन की वैल्यू कहाँ पे स्टोर करनी है। अगर कुकी इज सपोर्टेड तो वो सेशन की वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर देगा, और इफ कुकी इज नॉट सपोर्टेड तो अपने आप URL के अंदर सेशन की वैल्यू को एम्बेड कर देगा। अगेन आई रिपीट, अगर हमने कुकीलेस एट्रीब्यूट में मैंने सेट किया है ऑटो डिटेक्ट वैल्यू, सो व्हाट इट विल डू, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि सेशन की वैल्यू कहाँ पे स्टोर करनी है, राइट? दैट इज सेशन आईडी। अगर कुकी सपोर्टेड है तो वो सेशन आईडी कुकी के अंदर स्टोर करेगा, और अगर कुकी सपोर्टेड नहीं है
तो वो ऑटोमेटिकली यूआरएल के अंदर हमारे सेशन आईडी को एम्बेड कर देगा। नाउ व्हाट इज द थिंग, आपको भी पता है कि यूआरएल का मीनिंग क्या है, कि पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर पर्टिकुलर पेजेस है वो आप अभी एक्सेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल हम जब भी हमारी वेबसाइट रन करते हैं तो क्या लिखा हुआ मिलता है, http://localhost : एक नंबर होता है स्लैश हमारी वेबसाइट का नेम स्लैश द पेज नेम विच वी आर currently executing. So obviously localhost is the name of the server. localhost क्यों लिखा है, बिकॉज मैं लोकल मशीन पे से मैं अभी ये वेबसाइट को रन कर रही हूँ, मैंने सर्वर के ऊपर अपलोड नहीं किया है। सो लोकल होस्ट कॉलन और वो जो नंबर होता है दैट इज द पोर्ट नंबर, कहाँ पे वो पर्टिकुलर वेबसाइट एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पहले प्रोटोकॉल होगा दैट इज वी नो HTTP, उसके बाद सर्वर का नेम होगा, इन आवर केस इट इज लोकल होस्ट, उसके बाद पोर्ट नंबर होगा, राइट, कि वो पर्टिकुलर सर्वर पे कौन से पोर्ट के ऊपर हमारी वेबसाइट एग्जीक्यूट हो रही है। बट आफ्टर दैट द थिंग दैट इज एम्बेडेड इज सेशन आईडी, राइट। सेशन आईडी के बाद हमें वर्चुअल डायरेक्टरी दैट इज द नेम ऑफ आवर वेबसाइट मिलेगी, राइट, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द पेज नेम। सो व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा यूआरएल पूरा चेंज हो गया, मॉडिफाई हो गया। क्यों मॉडिफाई हुआ, बिकॉज हमने सेशन आईडी कहाँ पे स्टोर किया, यूज यूआरआई वैल्यू का यूज करके मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे सेशन आईडी यूआरएल के अंदर स्टोर करना है। मीन्स जब भी हम सेशन आईडी यूआरएल के अंदर स्टोर करेंगे तो हमें हमारा ओरिजिनल यूआरएल नहीं मिलेगा, हमें मॉडिफाइड यूआरएल मिलेगा। वो मॉडिफाइड यूआरएल के अंदर सेशन आईडी स्टोर किया हुआ होगा, and that particular URL will be known as munged URL. And the technique which is used to embed this session ID within the URL is that is munged URL technique, right? So we can also say that it is a kind of disadvantage कि हम अगर सेशन की आईडी यूआरएल के अंदर स्टोर करते हैं तो हमें हमारा ओरिजिनल यूआरएल नहीं मिलेगा, बिकॉज सेशन आईडी हमें यूआरएल के अंदर एम्बेड किया हुआ मिलेगा, राइट। सो दिस यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर इज कि अगर आप कुकीलेस के अंदर यूज कुकीज वैल्यू स्टोर करते हो तो वो अपने आप कुकी के अंदर ही स्टोर करेगा सेशन आईडी। अगर आप कुकीलेस के अंदर यूज यूआरआई स्टोर करते हो तो वो यूआरएल में आपकी सेशन आईडी को एम्बेड कर देगा। बट अगर आप कुकीलेस में ऑटो डिटेक्ट यूज करते हो, इट मीन्स वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि पहले वो कुकी को प्रायोरिटी देगा कि अगर कुकी सपोर्टेड है तो वो कुकी के अंदर स्टोर करेगा, अगर कुकी सपोर्टेड नहीं है तो वो यूआरएल के अंदर एम्बेड कर देगा, राइट। सो दिस were the properties of session state tag which we can write within web.config file if we want to store properties related to the session in a global manner, because as we have already discussed कि आप web.config file में जो भी चीज स्टोर करोगे, राइट, वो आप पूरी वेबसाइट के लिए वो पर्टिकुलर चीज आप सेट कर रहे हो, राइट। सो अगेन आई रिपीट, अगर आपको web.config फाइल में सेशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज स्टोर करनी है आप सेशन स्टेट टैग का यूज कर सकते हो, राइट। और सेशन स्टेट टैग के अंदर आप उसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो। मीन्स पहली तो चीज है कि आपको कहाँ पे आपके सेशन रिलेटेड डेटा स्टोर करने हैं, उसका लाइफ टाइम क्या होगा, राइट। दूसरी चीज कि आपको सेशन डिसेबल करना है कि नहीं करना है, एंड अगर आप सेशन की वैल्यू स्टोर करते हो तो आपको कहाँ पे स्टोर करनी है, कुकी में स्टोर करनी है, यूआरएल में स्टोर करनी है, डेटाबेस में स्टोर करनी है, या फिर प्रोसेस मेमोरी में ही रहने देनी है, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स यू कैन स्टोर विद इन द सेशन स्टेट टैग within web.config file, that is the properties related to the session. All right, now what are the advantages of session? Obviously the first advantage will be it is simple to implement. अगर आपको सेशन के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो आप क्या करोगे, सेशन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन वेरिएबल नेम डबल कोटेशन ओवर पैरेंथेसिस ओवर इक्वल टू वैल्यू। दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू नीड टू स्पेसिफाई इफ यू वांट टू क्रिएट द सेशन। अगर आपको सेशन में से वैल्यू रिट्राइव करनी है, अगेन द सेम प्रोसीजर, आप वेरिएबल का नेम यूज करो,
दैट इज वेरिएबल नेम इक्वल टू सेशन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन, और कौन से वेरिएबल नेम में से आपको वैल्यू रिट्रीव करनी है दैट यू नीड टू स्पेसिफाई ओवर दैट, राइट। अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट एंड अनदर एडवांटेज ऑफ सेशन इज वो हमें डेटाबेस के अंदर भी वैल्यू स्टोर करने की परमिशन देता है। और हमें पता है कि अगर हम डेटाबेस के अंदर सेशन की वैल्यू स्टोर करेंगे then what is the benefit of it? Obviously the data of the session will remain persistent within the database। जब तक हम explicitly उसको delete नहीं करेंगे, हमारे सेशन के सारे डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर रहेंगे, that is it will be stored in persistent manner, right? Another thing is अगर आप cookieless implementation करना चाहते हो, right, means you can also store crucial data। आप एक बार cookieless के अंदर स्टोर कर दोगे कि आपको कहाँ पे डेटा स्टोर करना है, मीन्स अगर आपको डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करना है तो वो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करेगा, कुकी का यूज नहीं करेगा। और अगर वो कुकी का यूज नहीं करता है तो ऑब्वियसली आप क्रूशियल डेटा भी उसके अंदर स्टोर कर सकते हो, क्रिटिकल डेटा भी आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। मीन्स द थिंग इज दैट आप डिसाइड कर सकते हो कि आप जो इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो सेशन के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी क्रिटिकलिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, राइट। वो सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हो एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड कि आपको सेशन के अंदर डेटा कहाँ पे स्टोर करना है। अगर आप सेशन के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करते हो जो इतना क्रूशियल नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कॉन्फिडेंशियल नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, आप कुकी का यूज करो। कुकी का यूज करोगे देन द बेस्ट पार्ट इज वो सर्वर के रिसोर्सेज यूज नहीं करेगा। एंड इफ अवर information is confidential, our information is crucial, तो obviously हम वहां पे कुकी लेस सेशन क्रिएट करेंगे, मतलब हमारे डेटा कुकी के अंदर स्टोर नहीं होंगे, राइट। अनदर एडवांटेज इज दैट एक ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास के अंदर हमारे पास सेशन रिलेटेड स्पेसिफिक इवेंट्स है, दैट इज सेशन स्टार्ट एंड सेशन एंड, जो कब फायर होगी, जब भी सेशन क्रिएट होगा एंड जब भी सेशन टर्मिनेट होगा, तब ये दोनों इवेंट्स ऑटोमेटिक फायर होगी। मीन्स अगर मुझे कोई टास्क करना है जो पर्टिकुलर यूजर का सेशन क्रिएट होता है तब, या फिर यूजर का सेशन डिस्ट्रॉय होता है तब मुझे कोई पर्टिकुलर टास्क करना है, then it is very easy to perform that task if we use global application class। और उसके अंदर जो उसके स्पेसिफिक इवेंट्स है दैट इज सेशन स्टार्ट एंड सेशन एंड इवेंट का यूज हम करेंगे, तो इजी मैनर के अंदर हम पर्टिकुलर यूजर के स्टार्ट के मतलब क्रिएशन टाइम पे और टर्मिनेशन टाइम पे हम कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जब ये ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 इवेंट्स है वो आप कब यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ यूजर्स हु आर यूजिंग योर वेबसाइट, सेकंड टोटल नंबर ऑफ यूजर्स मतलब कितने यूजर्स ने अब तक हमारी वेबसाइट यूज की है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, और करंटली कितने यूजर्स हमारी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट। सो इफ आई वांट टू परफॉर्म द टास्क कि मुझे मेंटेन करना है कि करंटली मेरी वेबसाइट को कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं, देन इट इज वेरी सिंपल। सेशन स्टार्ट के अंदर, सेशन स्टार्ट इवेंट के अंदर मैं क्या करूंगी, काउंट को इंक्रीमेंट करूंगी, और सेशन एंड इवेंट के अंदर मैं काउंट को डिक्रीमेंट करूंगी, राइट। सो अगर मैं सेशन स्टार्ट और सेशन एंड इवेंट के अंदर ऐसा टास्क करती हूँ तो वो पर्टिकुलर काउंट की वैल्यू मैं जब भी अपनी वेबसाइट में रिट्राइव करूंगी, मुझे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट करंटली कितने यूजर्स मेरी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं वो मुझे मिल जाएगा। आपने बहुत सारी वेबसाइट के अंदर देखा होगा कि वो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स विजिटर्स डिस्प्ले करता है, ऑनलाइन विजिटर्स कितने हैं, ऑनलाइन विजिटर्स मतलब करंटली अभी कितने विजिटर्स या फिर करंटली अभी कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। सो सेम थिंग अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर मेंटेन करना है तो यू कैन यूज ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास, और ग्लोबल एप्लीकेशन क्लास के अंदर जो उसकी इवेंट है सेशन की वो आप यूज कर सकते हो, और उसके अंदर आप काउंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो, right students? So these are the advantages of the session. Obviously as I have told, everything has two sides, so session also has disadvantages। ऑब्वियसली पहला डिसएडवांटेज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर हम सेशन आईडी
URL के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो हमें ओरिजिनल URL नहीं मिलेगा। अगेन आई रिपीट, अगर हम सेशन आईडी URL के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो हमें ओरिजिनल URL नहीं मिलेगा, राइट? So that is the first disadvantage. Another disadvantage related to the same topic is means session ID के related दूसरा disadvantage क्या है? That it is visible in the URL. Again I repeat, it is visible in the URL. अगर आपको कोई भी यूजर का सेशन आईडी पता है तो आप वो पर्टिकुलर सेशन में से इजी मैनर के अंदर आप यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हो। मीन्स इफ वी स्टोर सेशन आईडी इन URL, then I think we are losing the security that the session is providing, because session ID means unique identifier of that particular session, और वो ही अगर URL के अंदर विजिबल है तो ऑब्वियसली हम वो आईडी का यूज करके वो पर्टिकुलर आईडी में जो भी सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है यूजर स्पेसिफिक, वो हम इजी मैनर के अंदर रिट्राइव कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज द सेकंड डिसएडवांटेज। अनदर इज इफ कंट्रोल पास फ्रॉम वन पेज टू अनदर, ASP.NET मैनेज इट बाय इटसेल्फ, राइट? मीन्स अगर कंट्रोल्स की वैल्यू आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर पास करते हो कंट्रोल स्पेसिफिक वैल्यू, राइट? तो वो ASP.NET खुद मैनेज कर लेता है अगर रिलेटिव URL हो तो, बट अगर एब्सोल्यूट URL वो बन जाता है तो हम ये फीचर जो ASP.NET का है वो हम लॉस्ट कर देंगे, मतलब वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? और ऑब्वियसली अगर हम सेशन के URL मतलब वेबसाइट के URL को ही मॉडिफाई कर देते हैं तो उसके अंदर हम वो कंट्रोल पास होता है वो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, वो हम ऑटोमेटिकली मेंटेन करना ही कर पाए, राइट? सॉरी। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के अगर हम सेशन आईडी URL के अंदर स्टोर करते हैं तो फर्स्ट वी विल नॉट गेट ओरिजिनल URL, सेकंड सेशन आईडी विजिबल हो जाएगा सबको, और जो भी कंट्रोल एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर पास हो रहे हैं वो ASP.NET खुद मैनेज नहीं कर पाएगा बिकॉज उसको relative URL नहीं मिलेगा, right? So these are the things which you need to remember about the session, right? So the most important part is कि session ID, that is the unique identifier, जो आप हर जगह पे सेशन के लिए यूज कर सकते हो अगर आपको आईडी का यूज करके पर्टिकुलर यूजर का सेशन रिट्राइव करना है तो, right? And the last part of the topic that is session is, right? आप सेशन को किल कैसे कर सकते हो? अगर आपको एक्सप्लिसिटली सेशन को टर्मिनेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो? फर्स्ट इज आप अबंडेंट मेथड का यूज करोगे। हमने ऑलरेडी देखा था स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कि जब भी हम लॉग इन करते हैं तो एट दैट टाइम सेशन क्रिएट होता है, और जब हम लॉग आउट करते हैं तो ऑब्वियसली हमें सेशन को डिस्ट्रॉय करना है, और वहां पे हमने सेशन डॉट अबेंडेंट ऐसी मेथड का यूज किया था, राइट? So if you want to kill the session, if you want to terminate the session, if you want to destroy the session, तो आप abandoned method का use कर सकते हो। Another thing is आपको सेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, राइट? आपको सिर्फ उसके अंदर जो डेटा है उसको रिमूव करना है। देन यू कैन यूज क्लियर मेथड। अगर आप लिखोगे सेशन डॉट क्लियर तो सिर्फ उसके अंदर जो वैल्यू है, उसके अंदर जो डेटा है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो रिमूव होगी, सेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, राइट? नाउ देयर आर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज आपको चेक करना है कि ये सेशन नया सेशन है कि नहीं, तो आप यूज कर सकते हो दैट इज न्यू सेशन। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है मींस इट इज अ न्यू सेशन, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है इट मींस इट इज अ ओल्ड सेशन, राइट? अनदर इज रीड ओनली। इट मींस ये पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम कोई भी चीज एडिट नहीं कर सकते। इज रीड ओनली की वैल्यू अगर ट्रू है मींस इट इज अ रीड ओनली सेशन, फॉल्स है तो हम उसके अंदर वैल्यू एडिट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज कुकीलेस। मुझे ये डिटरमाइन करना है कि मेरा यूजर कुकीलेस मेरा सेशन कुकीलेस है कि नहीं। तो इफ द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी दैट इज कुकीलेस इज ट्रू, अगेन आई रिपीट, खास ध्यान रखना है यहाँ पे इज कुकीलेस है मींस कुकीलेस है कि नहीं, राइट?
ट्रू है इट मीन सेशन कुकी लेस है, और फॉल्स मीन सेशन कुकी लेस नहीं है, right? So that you need to consider over here. So these are the properties and methods, or more precise you can say members of the session. Now another important part के session and कैसे कैसे और which are the different ways कि आप सेशन एंड कर सकते हो या फिर यूजर का सेशन एंड हो जाता है, राइट? सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज. अगर यूजर ब्राउजर क्लोज कर देता है देन वो पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए यूजर का सेशन एंड हो जाएगा. अगेन आई रिपीट, अगर यूजर ब्राउजर क्लोज कर देता है तो वो पर्टिकुलर यूजर का वो पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए जो अभी ब्राउजर में ओपन थी उसका सेशन एंड हो जाएगा. सेकेंड इज, अगर सेशन की टाइम आउट प्रॉपर्टी रीच हो जाती है, इट मीन्स if I have set session timeout is equal to 5, मीन्स अगर 5 मिनट्स तक यूजर आइडल रहता है तो ऑटोमेटिकली उसका सेशन एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. एंड द लास्ट इज अबेंडेंट मेथड. अगर आपको सेशन एक्सप्लिसिटली टर्मिनेट करना है तो आप क्या करोगे, सेशन की अबेंडेंट मेथड का यूज करोगे, तो वो पर्टिकुलर सेशन एक्सप्लिसिटली आप टर्मिनेट कर पाओगे, right? So this is the important point and it is the important question which is asked in the theory paper of ASP.NET. So which are the different ways that will terminate the session, right? कौन से डिफरेंट वेज है जिसका यूज करके आप सेशन को टर्मिनेट कर सकते हो या फिर आप सेशन को एंड कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, that is the theory part of the session, right? Now let's do one thing, we will see one small example, right? कि हम कैसे सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और हम कैसे सेशन में से वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं. Alright, now application number 11 of your problem sheet that we are going to create over here, right? So ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मैंने एक अलग वेबसाइट क्रिएट की है और मैंने वेबसाइट का नेम दिया है सेशन EX, जो आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर देख सकते हो, राइट? अगेन आई रिपीट, ये सेशन के एग्जांपल के लिए मैंने एक अलग वेबसाइट क्रिएट की है और वो वेबसाइट का नेम मैंने दिया है सेशन EX. उसके अंदर मैंने 2 पेजेस क्रिएट किए हैं. आई हैव क्रिएटेड 2 पेजेस, दैट इज s1.aspx and s2.aspx, राइट? मैंने 2 पेजेस यहाँ पे क्रिएट किए हैं. नाउ लेट्स डू वन थिंग, दोनों के ऊपर हम डिजाइन करते हैं और जो भी रिलेटेड कोड है वो हम लिख देते हैं, राइट? सो फर्स्ट इज व्हाट आई वांट टू डू विद इन दिस एग्जांपल. जैसे आप प्रॉब्लम शीट के अंदर देख पाओगे, दैट इज एप्लीकेशन नंबर 11. आपको क्या करना है, आपको यूजर के पास से यूजर के 2 फेवरेट कलर्स लेने हैं, राइट? दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट? और आपको वो पर्टिकुलर कलर्स सेशन के अंदर स्टोर करने हैं. एंड आफ्टर दैट आपको दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट होना है और वो पर्टिकुलर पेज के अंदर आप कोई भी एक कंट्रोल का सिलेक्शन कर सकते हो और वो पर्टिकुलर कंट्रोल की फॉर कलर और बैक कलर प्रॉपर्टी को आपको वो वैल्यू से सेट करना है जो यूजर ने एज अ फेवरेट कलर दी है, राइट? सो दिस इज अ सिंपल टास्क. हमने कुकी के साथ भी किया था, सेम टास्क किया था, बट ओवर देयर हमने जो भी वैल्यू थी वो कुकी के अंदर स्टोर की थी. हम यहाँ पे जो भी वैल्यूज है दैट इज फॉर कलर एंड बैक कलर, हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, सेशन के अंदर स्टोर करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज s1.aspx पेज. आई एम राइटिंग enter your favorite color and after that I am writing first colon and obviously I will specify text box control from the toolbox because मुझे यूजर के पास से वैल्यू लेनी है. So here I have placed text box control. प्रॉपर्टी विंडो के अंदर मैं उसकी प्रॉपर्टी सेट कर देती हूँ. So first property which I will set, that is ID property, that is txt first, right? All right, after that I will write second. Again I will take text box control and I will set its ID property as txt second, right? And after that, as I want to navigate from one page to another, there are different ways, but I will use over here is button control. So button control की ID property मैं set करती हूँ, that is btn send, right?
and obviously the text property will be send, right? So मैंने s1.aspx पेज के ऊपर क्या डिजाइनिंग की, मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स लिए because I want to take two input from the user, that is first favorite color and second favorite color, and after that मैंने send बटन लिया। send बटन की क्लिक इवेंट पे मुझे क्या लिखना है, मुझे पहले तो सेशन को क्रिएट करना है और उसके बाद मुझे S2 पेज के ऊपर नेविगेट होना है। So let's double click on the send button, right? इसकी क्लिक इवेंट ओपन हुई। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ऑब्वियसली पहले हम सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे तो सेशन क्रिएट हो जाएगा। सो आई विल राइट ओवर हियर सेशन within parenthesis double quotation first is equal to txt first dot text, right? So this is the first name value pair, second name value pair, that is session within parenthesis double quotation second is equal to txt second dot text, right? So मैंने दोनों वैल्यू सेशन के अंदर स्टोर कर दी, मीन सेशन इज क्रिएटेड। अब मुझे क्या करना है, s2.aspx पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होना है। सो आई विल राइट response dot redirect within parenthesis double quotation s2.aspx, सिंपल स्टेप्स, राइट? सेशन क्रिएट हो गया और रीडायरेक्ट मेथड से मैं s2 पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दूंगी। So let's design s2.aspx page. Simple, I will write over here, enter your name, right? And after that, obviously, as I need to take input from the user, so again, I will use text box control. I will set its ID property as txt name, right? And after that, I will write, I will take one button control, and within that, I will display the name which is entered by the user. सो बटन मैंने लिया, उसकी आईडी प्रॉपर्टी मैं सेट कर रही हूँ btn डिस्प्ले, राइट? एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी डिस्प्ले। बट ओवर हियर व्हाट आई वांट टू डू कि जब भी ये s2.aspx पेज ओपन होता है, मुझे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की फॉर कलर और बैक कलर प्रॉपर्टी वो सेट करनी है जो यूजर ने फर्स्ट और सेकंड कलर दिए है वो। सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड, राइट? एंड एज यू नो कि अगर हमें कलर सेट करना है तो हमें कलर का क्लास का यूज करना पड़ेगा, और कलर क्लास कौन सी नेम स्पेस के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज सिस्टम डॉट ड्रॉइंग। सो ओवर हियर आई विल राइट इंपोर्ट सिस्टम डॉट ड्रॉइंग। सो नेम स्पेस मैंने इंपोर्ट कर दी। अब ऑब्वियसली ये जो डिस्प्ले बटन है उसकी क्लिक इवेंट के अंदर हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, राइट? सो आई विल राइट msg box within parenthesis double quotation welcome, right? And I will concatenate the value which user will give within txt name dot text, right? All right, so मैंने क्या किया, पहले तो मैंने नेम स्पेस इंपोर्ट की, दैट इज इंपोर्ट सिस्टम डॉट ड्रॉइंग। उसके बाद मैंने डिस्प्ले बटन का कोडिंग किया, दैट इज वेलकम, और यूजर का नेम मैं कहाँ पे डिस्प्ले करूंगी, मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करूंगी। बट स्टिल आई हैव नॉट स्पेसिफाइड कि मुझे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की फॉर कलर और बैक कलर प्रॉपर्टी को सेट करना है। सो ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी हम कहाँ पे सेट करेंगे, हम वो प्रॉपर्टी ये पेज की पेज लोड इवेंट के ऊपर सेट करेंगे। मतलब ये पेज जब भी लोड होगा हम सेशन में से वो दोनों वैल्यू रिट्राइव करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स की फॉर कलर और बैक कलर प्रॉपर्टी को सेट कर देंगे। सो आई विल राइट dim f color is equal as color is equal to color dot from name, right? I will use from name method, and within that I will write session के अंदर मैंने फर्स्ट वेरिएबल का नेम दिया था फर्स्ट and parenthesis over. Likewise dim b color, that is for back color as color. सेम स्टेटमेंट्स हमने कुकी के अंदर भी यूज किए हैं, राइट? मीन्स आपको पता ही है। ओनली द थिंग इज दैट हम यहाँ पे वैल्यू का किस में से रिट्राइव कर रहे हैं, सेशन में से रिट्राइव कर रहे हैं, और वो एग्जांपल में हमने वैल्यू कुकी में से रिट्राइव की थी, राइट? सो मैंने क्या किया, मैंने कलर क्लास के दो रेफरेंसेस क्रिएट किए, दैट इज एफ कलर एंड बैक कलर, और उसके अंदर कलर क्लास की फ्रॉम नेम मेथड का यूज करके सेशन में से जो भी ये फर्स्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उसको हम नेम के अंदर कन्वर्ट करेंगे और एफ कलर के अंदर असाइन करेंगे। लाइकवाइज
डी कलर रेफरेंस के अंदर हमने क्या किया, सेशन में से ये जो सेकंड वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रिट्राइव किया, कलर डॉट फ्रॉम नेम के अंदर मैंने पास किया, मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू को नेम के अंदर कन्वर्ट करके अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट विच इज स्पेसिफाइड विद इन कलर क्लास, डी कलर के अंदर वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। नाउ simple thing, I need to set properties of the text box. So txt name dot for color, I will set it to F color, and after that txt name dot back color, I will set it to B color. Simple task, right? So मैंने text box की for color और back color property को भी set कर दिया। किससे set किया? That is the reference of the color. कौन से reference? That is F color and B color. So let's save this application और हम इसको execute करते हैं। execute करने के लिए what we will do? execute करने के लिए I will set s1.aspx as a start page, right? Start page मैंने set किया and I will execute it. Obviously we are executing it for the first time, so ये हमें पूछेगा modify करना है, okay. So the page will be loaded within the browser, right? Executing for the first time, so obviously it will take some time. All right, see over here, our page is loaded within the browser, that is s1.aspx. First में I will write it as favorite color is white. Second में I will write it as black, right? And I will click on send button, right? जैसे ही मैंने send button के ऊपर क्लिक किया, text box की for color property set हो गई white, right? और back color आपको दिखाई दे रही है black. सिंपल टास्क। डिस्प्ले बटन के ऊपर मैंने वेलकम मैसेज यूजर को प्रोवाइड किया, दैट इज वेलकम डॉक्टर निकिशा जरीवाला, राइट? सो दिस इज अ सिंपल टास्क के जो हमने सेशन का यूज करके किया, राइट? हमने s1.aspx पेज के ऊपर सेशन क्रिएट किया था, उसके अंदर फॉर कलर और बैक कलर वैल्यू यूजर के पास से लिए थे एज अ फेवरेट कलर, और सेंड बटन के ऊपर जब भी यूजर क्लिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स की फॉर कलर और बैक कलर प्रॉपर्टी को सेट किया, और उसके अंदर यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेंगे डिस्प्ले बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज सेशन, जिसके अंदर हमने थियरी और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दोनों देखा, एंड ये एग्जाम्पल आपकी प्रॉब्लम शीट में एप्लीकेशन नंबर 11 है जो मैंने आज लेक्चर में डेमोन्स्ट्रेट किया। ऑलराइट, सो टुडेज टॉपिक इज कंप्लीटेड ओवर हियर। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, एल्स वी विल एंड अवर लेक्चर ओवर हियर।